Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today from the syllabus of BA Poetry, that is All the World's a Stage. The poem, 10th poem is that All the World's a Stage by Shakespeare. First I am going to do reading, and after this I will tell you about Shakespeare, and then we will translate it into Urdu. All the world's a stage. You will keep concentration on pronunciation. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits, and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7/8. At first the infant, mewling and pucking in the nurse's arms, and then the winning schoolboy with his satchel, and shining morning face creeping like snail, unwillingly to school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange asses, and bearded like the pod, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, and when the justice in fair round belly with good cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise salves, and modern instances, and so he plays his part. The fixed age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on sight. His youthful hose well shaped, a word too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes, and whistles in his sound lost in a fall. That ends this strange eventful history. His second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Shakespeare was born in 1564 in Upon Avon, England. He was born in England in 1564, and he was died in 1616. Clear? He was a great Elizabethan poet. It means that जब वो पोएट था उस वक्त मलका एलिजाबेथ का दौर था, इसीलिए हम इसे कहते हैं he is the poet of Elizabethan period. Shakespeare actually he was a dramatist. ये ड्रामे लिखा करता था. बचपन में हिरन का शिकार करते हुए इसके ऊपर चार्ज हुआ, इल्जाम लगाया गया कि हिरन का शिकार मना है और इस शख्स ने हिरन का शिकार किया है. अपॉन अवान जो कि इसका विलेज था, टाउन था, वहां से भागा और लंदन में आकर एज अ हेल्पर काम करना शुरू कर दिया इसने ड्रामे की स्टेज पर. फिर एक्टर और एक्टर से ड्रामाटिस्ट बन गया. ही वॉज द फेमस पर्सन एंड मोस्ट फेवरेबल पर्सन ऑफ किंग्स एंड क्वींस. किंग्स और क्वींस इसे खिताबात भी देते थे और उस दौर का बहुत अच्छा पोएट था. He was not a great only great poet. Actually he was a great dramatist. असल में ये पोएट नहीं है, ड्रामाटिस्ट है. ड्रामे लिखा करता था. ये पोएट भी था, लेकिन एक्चुअली ये फेमस था किस वजह से? ड्रामास की वजह से. किस वजह से? He was a dramatist. आप कहेंगे ड्रामाटिस्ट था. ये जो आपके सिलेबस में पोएम है, ये भी ड्रामे का एक डायलॉग है. ड्रामे का नाम है एज यू लाइक इट,
اس کا سین نمبر 7 لائن نمبر 139 to 166 یہ لائنز نمبر ہیں ڈراماز کے اندر. اگر یہ ڈرامے کا ڈائلاگ ہے تو اس کو ڈرامے کے انداز میں ہونا چاہیے تھا, ڈائلاگ کے انداز میں ہونا چاہیے تھا, اسے پروز کے انداز میں ہونا چاہیے, اسے سمپل انگلش کے انداز میں ہونا چاہیے تھا. یہ پوئٹری کی فارم میں کیوں ہے کوشچن ہے. اس لیے کہ شیکسپیئر کے پیریڈ میں جو ڈرامے لکھے جاتے تھے وہ پوئٹری کے انداز میں لکھے جاتے تھے. اس سے پہلے گریٹ پوئٹ ایک اور ہے کرسٹوفر مارلو, اس کے ڈراماز دیکھتے ہیں وہ بھی پوئٹک فارم میں ہیں, پوئٹری میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے ڈراماز بھی سارے کے سارے پوئٹری کی فارم میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سمپل ڈائلاگ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ دا ڈائلاگ آف ڈراما, ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ از اے پوئم. کلیئر. آئیے اب دیکھتے ہیں ایز یو لائک اٹ سے لیا گیا یہ جو پیچ ہے, یہ جو ایک پوئم کی صورت میں ایک حصہ پارٹ لیا گیا ہے, اس کے اندر پوئٹ کہنا کیا چاہتا ہے. Are you ready for this? All the worlds of stage کا مطلب ہے پوری دنیا ایک سٹیج کی مانند ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ساری ایک سٹیج ہے ڈرامے کی اور ہم تمام لوگ اس پر ایکٹر ہیں. ہر انسان اپنے اپنے حصے کی ایکٹنگ کرتا ہے دنیا کے سٹیج پر. ہر انسان 7 ایکٹنگ کرتا ہے, 7 ادوار میں ایکٹنگ کرتا ہے, 7 اقسام کی ایکٹنگ کرتا ہے, 7 قسم کی ایکٹنگ کرتا ہے ہر انسان. سمجھ آگئی بات. یہ آگے سمجھ. یہ دنیا میں انسان 7 قسم کی ایکٹنگ کرتا ہے. 7 ٹائپ آف ایکٹنگ. کون سے 7 قسم کی اقسام ہے؟ پہلے وہ کہتا ہے انسان ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آیا کی باہوں میں روتا ہے, الٹیاں کرتا ہے, روتا رہتا ہے. پھر دوسری سٹیج اس کی آتی ہے, نئی ایکٹنگ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سکول جانے والا بچہ بن جاتا ہے. بستہ اس کے کندھے پر ہوتا ہے, شکایت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, چہرہ اس کا دمک رہا ہوتا ہے, پر رونق ہوتا ہے اور وہ سکول کی طرف رینگ رہا ہوتا ہے. نہ چاہتا یہ ہے کہ وہ سکول نہ جائے. ٹھیک ہے. دوسری سٹیج. تیسری سٹیج پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان گبرو ہو جاتا ہے اور وہ محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ لور بن جاتا ہے. اس کا سینہ آگ اگلتا ہے, بٹھی کی طرح آگ اگلتا ہے اور وہ اپنی محبوبہ کی یاد میں گیت لکھتا ہے. کلیئر. پھر وہ دور ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ اس لو کو غیر سنجیدہ کوئی چیز سمجھتا ہے اور پھر وہ پروفیشنل لائف میں آ جاتا ہے. وہ ایک سولجر بن جاتا ہے, کیونکہ شیکسپیئر کے پیریڈ میں موسٹلی جو نوجوان تھے وہ سولجر بن جاتے تھے, کیونکہ یہی ایک پروفیشن تھا بڑا. پھر وہ سولجر بن جاتا ہے. ٹھیک. اور پھر کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسے شہرت ملے, اسے عزت ملے. عزت اور شہرت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے. وہ توپ کے منہ میں جا گھستا ہے کہ شہرت ملے, عزت ملے. ٹھیک. اور اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے, جب اس نے کہا ہے کہ ہر شخص چوتھی سٹیج پر اگر سولجر بن جاتا ہے تو میں بھی شیکسپیئر کا ویژن مزید براڈ ہو, بڑا ہو. وہ کہنا چاہتا ہو کہ چاہے آپ کسی پروفیشن میں بھی جائیں, آپ ایک سپاہی کی طرح کام کرتے ہیں, سپاہی کی طرح پلاننگ کرتے ہیں, سپاہی کی طرح جستجو کرتے ہیں, سپاہی کی طرح آپ لڑائی لڑتے ہیں. کلیئر. کتنی سٹیج ہو گئی ہیں؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ کتنی؟ 4 سٹیج. چھوٹا بچہ, پھر اسکول بوائے, پھر لور, پھر سولجر. اس کے بعد اب بن جاتا ہے منصف, انصاف کرنے والا. جب ابا جی 45 سال کے ہو جاتے ہیں یا 50 سال کے ہو جاتے ہیں, ریٹائرڈ لائف میں تقریباً آنا شروع ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ سارے گھر کے فیصلے ابا جی کرتے ہیں, سارے پنڈ کے فیصلے وہ ابا جی کرتے ہیں. ہر بات میں بتاتے ہیں کہ جی اس کے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہر بات میں ان کی ایک مثال آ جاتی ہے, جی فلاں جگہ پر فلاں دن فلاں ہوا تھا, یہ بھی ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے.
वो एग्जाम्पल्स देता है, वो मिसालें देता है, वो कोट सुनाता है और वो मुनसिफ होता है इलाके का, या जज से, मुनसिफ से इंसाफ करने वाला जज, या फिर वो बकायदा जज की पोस्ट पर आ जाता है। सोल्जर की लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी तरक्की हो जाती है, उसे कहते हैं भाई अब तू बस कर, अब तूने बहुत दुनिया देख ली है, अब तू आकर यहाँ पर क्योंकि तूने घाट घाट का पानी पिया है, नाउ यू आर एबल टू जज द पीपल, जज द सिचुएशंस, जज द सिनेरियो, और मैटर को जज करके इंसाफ करो। तुम उसे एक पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से शायद मिल जाती है और वो एक जज बन जाता है। अगर वो ऑफिशियल जज नहीं बनता तो वो घर का जज जरूर होता है। दोनों तरह से शेक्सपियर की बात ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जिंदगी जो शुरू होती है, अब वो रिटायर्ड लाइफ में आ जाता है। ये कौन स्टेज है? 6 छठी स्टेज पर वो रिटायर्ड लाइफ जिंदगी गुजारता है, रिटायर्ड जिंदगी। अब उसने बड़े नरम से कपड़े पहने हुए हैं, बड़े उसने आईना के एक ग्लास उसने नाक पर रखी हुई है, साइड पर तंबाकू की एक पोटली रखी हुई है, और वो अब कोई काम नहीं करता, बस ऐसे ही वक्त गुजार रहा है। और 7th स्टेज जब आती है, अब वो बिल्कुल बुरा हो चुका है, उसके दांत भी नहीं रहे, उसका टेस्ट भी नहीं रहा, उसकी आंखें भी नहीं रही, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय गुमनामी के। अब वो एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। आप अक्सर देखते हैं गलियों के अंदर चारपाई डाल देते हैं, बाबे बाहर एक लकड़ी डंडा उसे दे देता स्टिक, और वो चारपाई के ऊपर बैठा रहता है। वो वेला हो जाता है, गुमनाम हो जाता है, वो उसे रोटी डाल दी जाती है तो इन ओब्लिवियन, गुमनामी में है वो शख्स, और इस तरह वो शख्स मरने के लिए तैयार है। ये थी 7th स्टेज ऑफ मैन, इंसान की 7 स्टेज। हर इंसान इस पीरियड में से गुजरता है। हर इंसान ने आखिरी पीरियड में, अल्लाह ने अगर उसे जिंदगी दी है तो आखिरी पीरियड तक पहुंचता है हर इंसान, और स्टेज नहीं है। और मैं हैरान हुआ जब मैंने ये पोएम पढ़ानी शुरू की। उन दिनों में मैं शेक्सपियर को कोई काबिल किस्म का राइटर नहीं समझता था, और मैं बहुत ज्यादा बहस किया करता था। शेक्सपियर इज नॉट अ हाईली एट्रीब्यूटेड राइटर, मैं कहा करता था। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि शेक्सपियर की ये जो पोएम है, दैट इज जीरो पोएम, इसमें कुछ भी नहीं है। यू बिलीव दैट विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के तजर्बात के साथ साथ मैंने महसूस किया है कि वाकई शेक्सपियर के हर एक लाइन ही नहीं, उस पोएम का हर एक वर्ड भी ठीक है। जहां जहां उसने जो जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो ठीक है। आप दुनिया का कोई भी शख्स है, अगर उसके पास 70 साल जिंदगी है तो वो जिंदगी में शेक्सपियर का नाम जरूर सुनता है। ठीक, इसलिए कि वो बहुत ही काबिल इंसान था, कि ही वॉज द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं सदी का सबसे ज़हीन शख्स वो था। और इसके बारे में क्रिटिक कहते हैं, जो शख्स भी शेक्सपियर को थारोली, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पाता, नाकाम हो जाता है। और शेक्सपियर बहुत ऑथेंटिक है। शेक्सपियर के बारे में राय आपकी उस वक्त कायम होती है कि शेक्सपियर कितना बुलंद है, बाला है और कितना अच्छा है, ये आपको उस वक्त अंदाजा होता है जब कम से कम आप 100 राइटर्स और पढ़ लें, वो भी इंग्लिश राइटर्स। 100 राइटर्स पढ़ लेंगे तो देन आपको आइडिया होगा कि ये कैसा राइटर है। मैंने 3100 नावल पिछले 2 साल पहले 3100 नावल अपने दोस्तों में तकसीम किए थे सिर्फ। ये तो मैंने 2 साल पहले ऐसा किया था। पिछले साल भी मैंने तकरीबन 700 बुक्स जो हैं वो डिलीवर की है। मैं इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी मुझे अंदाजा है, अब मुझे अंदाजा होता है कि शेक्सपियर इज रियली अ ग्रेट राइटर अमंग ऑल द राइटर्स। क्लियर? आइए अब लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं शेक्सपियर की। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, तमाम दुनिया एक ड्रामे की स्टेज की मानद है। जिस तरह आपने ड्रामा देखा होगा, एक तो पीटीवी के ड्रामा होते हैं, एक
लेक्चर किस्म के ड्रामा जो हमारे पाकिस्तान में बनते हैं, स्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं, ये उस स्टेज की बात की जा रही है। क्लियर? इंग्लैंड में उस वक्त टीवी तो नहीं होता था, वहां ड्रामाज ऐसे ही होते थे जैसे आज हमारे स्टेज ड्रामाज हैं, लेकिन थीम्स ये नहीं होते थे। आप जहन में थीम्स ना रखिएगा, जहन में सिर्फ ड्रामे की स्टेज का फ्रेम रखिएगा। कहने का मतलब है फ्रेम, कि सारी दुनिया एक स्टेज की मानद है, एंड ऑल द मेन एंड वेमेन मैनली प्लेयर्स, तमाम मर्द तमाम औरतें महज वो प्लेयर्स हैं, महज वो एक्टर हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, उनके जाने का भी रास्ता है, एंड देयर एंट्रेंसेस, और उनके आने का भी रास्ता है। स्टेज के ऊपर दो दरवाजे होते हैं, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। एक तरफ से अगर राइटर इंटर होते हैं तो दूसरी तरफ से राइटर चले जाते हैं। दुनिया भी इस तरह स्टेज की तरह है। हम जब पैदा होते हैं तो स्टेज के एक दरवाजे से इंटर होते हैं, और जब मरते हैं तो दूसरे स्टेज के दूसरे दरवाजे से हम बाहर चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान कई किरदार अदा करता है। इन हिज टाइम, अपनी जिंदगी में, प्लेज मेनी पार्ट्स, कई किरदार अदा करता है। कितने किरदार अदा करता है इंसान? 7. गुड। हिज एक्ट्स बीइंग 7 इज, उसके किरदार के 7 अदवार हैं, उसके किरदार के 7 जमाने हैं, वो 7 तरह से एक्टिंग करता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो एक छोटा बच्चा होता है। इन्फेंट मासूम छोटा बच्चा। म्यूलिंग एंड पकिंग, वो म्यूलिंग करता है, म्याऊ म्याऊ करता है, हल्की हल्की बिल्ली की तरह आवाजें निकालता है। एंड पकिंग, और वो उल्टियां करता है। इन द नर्स आर्म्स, नर्स की आर्म में उल्टियां करता है। नोटवर्दी बात यह है कि बच्चा जब आया है तो रो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो उल्टियां करता है। उल्टियां उस वक्त बच्चा करता है जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो दूध पी लेता है। शेक्सपियर ये भी कहना चाहता है कि इंसान जो है वो सेल्फिश भी है और उसके अंदर हवस भी है। इतना जरूरत नहीं हो जितना वो इकट्ठा करना चाहता है। इवन कि उसकी नेचर देखिए, उसको कोई होश नहीं है, छोटा बच्चा है लेकिन जरूरत से ज्यादा दूध पी लेता है हवस में, और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अभी वो इतना सियाना नहीं है कि वो उसे बर्दाश्त करना, अभी उसे सीखना है। क्लियर? तो साफ शेक्सपियर ने यही बताया है कि इंसान की नेचर कैसी है। बचपन से इंसान की नेचर हवस वाली नेचर है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, सेकंड स्टेज शुरू। साथ लिख दें, कहीं मेंशन कर दें आप भी, सेकंड स्टेज यहां से शुरू हो रही है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, और फिर वो विनिंग रोता हुआ स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है। विद हिज सचल, अपने बैग के साथ। सचल मीन बैग, बस्ता। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, बस्ता कांधों पर है और रोते हुए स्कूल जा रहा है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह की तरह दमकता हुआ उसका चेहरा है। उसका चेहरा रोशन है, सुबह की तरह रोशन है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो क्रीपिंग, और वो रेंगता है। स्नेल घूंगे की तरह, समंदर में घूंगा पाया जाता है। बहुत सुस्त रफ्तार होता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और वो बहुत स्लो रेंगता है। तो ये बच्चा भी स्कूल जा रहा होता है ना चाहते हुए, रोते हुए, इसीलिए रफ्तार भी उसकी सुस्त होती है। अनविलिंगली टू स्कूल, और ये ना चाहते हुए स्कूल जाता है। सेकंड स्टेज इज एंडेड, सेकंड स्टेज यहां खत्म हो गई। अब थर्ड स्टेज स्टार्ट है। एंड देन द लवर, और फिर लवर बन जाता है, मोहब्बत करता है। साइंग लाइक अ फर्नेस,
भट्टी की तरह आहें भरता है, आग जैसी आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेट, और फिर वो वोफुल दुखी, बैलेट गीत, और वो एक दुखी गीत गाता है। में दुखी गीत लिखता है, बनाता है। टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस, अपनी बीवी की या अपनी महबूबा की आईब्रो, उसकी भवों की प्रेज में। आईब्रो होती है ना, ये आंख के ऊपर आईब्रो है हमारी, ठीक है, ये चांद की तरह उसकी आईब्रो है, तो वो ये लिखता है कि जी उसकी आईब्रो चांद की तरह है, बहुत खूबसूरत है। उसके ऊपर पूरा उसने गीत बना डाला है अपनी महबूबा के लिए। थर्ड स्टेज एंडेड, आपने लवर देखा। इस लवर को पढ़ाते हुए मुझे एक बहुत कदीम राइटर याद आ गया है, जिसका नाम जेफरी चासर है। लोग उसे चौसर कहते हैं, मैं उसे चासर कहता हूं। चौसर, मैं उसे, सारी दुनिया चौसर कहती है, लेकिन हम कुछ दोस्त हैं जो चासर कहते हैं और समझते हैं कि ये चासर ही कहना चाहिए। जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, वो इंग्लिश का फादर वही है। उसने अपनी बुक के अंदर प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था स्क्वायर। स्क्वायर एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पोएम है, इंट्रोडक्शन है पोएम में है। स्क्वायर जो था वो एक लवर, नौजवान लवर था, और जब शेक्सपियर के इस लवर को देखा है तो वो लवर भी हमें याद आ जाता है, और लगता है शेक्सपियर का ये लवर और चासर का वो स्क्वायर, वो दोनों एक जैसे हैं। वो स्क्वायर भी, उसने बड़े रंगीन कपड़े पहने होते हैं, खुली स्लीव पहनी होती है, हर रात जागता रहता है, महबूबा की याद में वो गीत लिखता रहता है, म्यूजिक कंपोज करता है, फ्लूट बजाता है। वो भी ऐसा ही लवर है। क्लियर? ये चासर का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि एक्यूट इंग्लिश वर्स की जो मेरी लिखी हुई बुक है, जब आप उसको अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्यूट इंग्लिश वर्स में जहां पर लवर की स्टेज आएगी वहां पर चासर का जिक्र आ जाएगा। ऐसा ना हो कि वहां पर आप कहें कि ये स्क्वायर कौन है और ये चासर कौन है। तो मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन यहीं पर कर दूं। लेट्स सी कितनी स्टेज हो गई है। हाउ मेनी स्टेज आर फास्ट? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? गूंगे हैं आप लोग? 3 स्टेज बोला करें आप लोग। 3 स्टेज पास, 4th स्टेज इज नाउ रेडी टू स्टार्ट। देन अ सोल्जर, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, वो लड़ने वाला लड़ाका सिपाही बन जाता है। फुल ऑफ स्टैंड आसेस, इसे आउट से नहीं कहते, ये जज के कचहरी के अंदर भी लिखा होता है ओथ कमिश्नर, तो गलत होता है, आउट लफ्ज है। आसेस, फुल ऑफ स्टैंड आसेस, और वो अजीबो गरीब कस्मों से भरा होता है। आसेस मीन कस्में। एंड बियर्डेड लाइक द पोर्ट, चीते की तरह दाढ़ी रखता है। ये जंगजू जितने भी थे ये सारी दाढ़ी रखा करते थे। दाढ़ी रखना जंगजू का शेवा था। क्यों रखा करते थे? बिकॉज इससे इंसान की हैबत बढ़ जाती है, दूसरे के ऊपर आप भारी पड़ जाते हैं। उसे डराने के लिए दाढ़ी का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज में किया जाता था। क्लियर? और आजकल लोग दाढ़ी नहीं रखते, बिल्कुल ही नहीं रखते, क्योंकि आजकल लोगों को लड़ना नहीं पड़ता। आजकल तो हमारे पास लेटेस्ट एटम बॉम्ब्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हमें लड़ना नहीं है, तो इसलिए लोग दाढ़ी भी नहीं रखते। मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं। देन सोल्जर, फिर वो सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्टैंड आसेस एंड बियर्डेड लाइक द पोर्ट, और चीते की तरह दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, और इज्जत के लिए बड़ा जेलस होता है। सडन एंड क्विक इन क्वाल, और हर वक्त तैयार रहता है क्वाल, लड़ने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बुलबुले की मानद आरजी रेपुटेशन हासिल करने के लिए। बहुत अहम बातें की गई हैं। किसी भी प्रोफेशन में कोई भी शख्स है
जब वो प्रोफेशन में जाता है, वो जॉब हो या वो बिजनेस हो, वो टीचर हो या वो अच्छा वकील हो, कोई भी शख्स किसी भी प्रोफेशन में जाएगा वो जेलसी फील करेगा ऑनर में कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, उसे इज्जत क्यों मिल रही है। एक बात ये हर प्रोफेशन में होती है। सेकंड बात कि वो सारी कोशिश स्ट्रगल क्यों करता है, रेपुटेशन हासिल करने के लिए। रेपुटेशन हासिल करने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करता है। और शेक्सपियर ने कहा है कि रेपुटेशन जो है ये बबल रेपुटेशन है, ये आर्जी रेपुटेशन होती है। इज्जत कोई चीज नहीं होती, इज्जत बहुत आर्जी चीज होती है। एक ड्रामा है शेक्सपियर का जिसका नाम है उथेलो। उथेलो के अंदर शेक्सपियर कहता है, वो कहता है कि ये इज्जत बहुत ही आर्जी चीज है, बाज़ औक़ात बिला वजह मिल जाती है और बाज़ दफा बिला वजह चली जाती है। ठीक है। और फिर स्मोक स्क्रीन ने भी एक कैरेक्टर प्रिमरोज ने कहा था, उसने कहा था कि मोहब्बत जो है ये बुलबुले की इज्जत जो है बुलबुले की मानद कोई चीज है। एक शख्स सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है और फिर उसे इज्जत देते हैं लोग, उसे इज्जत मिलती है। उसकी एक गलती की वजह से वो दलाम नीचे से आ गिरता है, तबाह हो जाती है इज्जत सारी की सारी। शेक्सपियर वाज जीनियस, ही इज सेइंग इन 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में बैठ के वो शख्स कह रहा है कि दैट इज अ बबल रेपुटेशन। और आज भी उसकी बात ये ऑथेंटिक है, ठीक है। लेट्स सी, इट इज सीकिंग द बबल रेपुटेशन। और ये बबल रेपुटेशन हासिल करने के लिए, ये आर्जी इज्जत हासिल करने के लिए, इवन इन द कनॉन्स माउथ, वो तोप के मुंह में जा घुसता है। तोप जब गोले बरसा रहा होता है वो इसलिए कि लोग कहें कि यस ही इज अ ब्रेव मैन, ये बहादुर है। इस सिर्फ फेम को, इस शोहरत को, इस इज्जत को गेन करने के लिए वो तोप के मुंह में जा घुसता है। मीन कि आर्जी इज्जत हासिल करने के लिए इंसान कितना पागल है कि आर्जी इज्जत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। पहले ये कंसेप्ट था कि जो शख्स किसी अहम मकसद के लिए मर जाए वो हीरो कहते थे। अब मॉडर्न एटीट्यूड के अंदर जो शख्स किसी मकसद के लिए मर जाए उसे फूल कहा जाता है। क्यों? जब आपने एक घर को बनाने की नीयत ठान ली, आपने घर को बनाने में जब दुश्वारी आई तो लोग आपसे लड़ने आए, आपने कहा नहीं घर बनकर रहेगा, और घर को आपने बना दिया, लेकिन आपकी मौत हो गई उस घर को बनाते बनाते। लोग आपको हीरो कहेंगे, लेकिन 3 सदियां गुजरने के बाद हो सकता है आपकी औलाद ही कहे कि ये घर तो बड़ा ही गलत तरीके से बना हुआ है, इसको गिरा दो। तो आपकी कुर्बानी कहां गई? तो मॉडर्न एटीट्यूड ये है कि जिंदगी नहीं जाया होनी चाहिए। कोशिश करो, लड़ना नहीं है। अहम बात यह है, कोशिश करनी है। मैं कहा करता हूं इख्तलाफ होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो बबल रेपुटेशन के लिए कनान के माउथ में जा घुसता है। और ये शेक्सपियर कहना यही चाहता है कि बबल रेपुटेशन जब वो कहता है तो उसका मतलब यही निकलता है कि समथिंग बहुत अच्छी नहीं है जिसके लिए वो तोप के मुंह में जा घुस रहा है। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो कौन सी स्टेज स्टार्ट है? 5th स्टेज स्टार्ट है। विच वन? 5th स्टेज। एंड देन द जस्टिस। मैं पहले बता चुका हूं, जब सोल्जर की बारी आई थी, सोल्जर का मतलब सिर्फ सिपाही नहीं है। सोल्जर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो सोल्जर का मतलब हर प्रोफेशन में हर शख्स सोल्जर है। राइट? लेट्स सी नाउ 5th स्टेज, दैट इज जस्टिस। फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि जस्टिस या तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जस्टिस है, जज तैनात कर दिया गया है, जज बना दिया गया है, या तो फिर वो अब घर के अंदर ही बस घर का पहलवान है, घर का जज है।
क्योंकि अब्बा जी का कहीं और बस चले ना चले, घर पर बड़ा बस चलता है उसका, तो घर का मुंसिफ वही होता है। लेट्स सी, आइए देखते हैं जस्टिस कैसे। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, और फेयर सामने की तरफ, राउंड गोल, बेली आगे की तरफ उसकी तोंद बढ़ी हुई है, आगे की तरफ उसका पेट ओवर हैंगिंग कर रहा है, उसका पेट आगे की तरफ वाज़ेह तौर पर अब लटक रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ में आ गया है ना। या तो वो घर का आदमी बन के रह गया, घर का जज। अगर ऑफिशियल जज है तो अब वो रिश्वत लेता है या बैठा रहता है सारा दिन, फैसले सुनाता रहता है, बैठने का काम है, मुशक्कत का काम नहीं है, इसलिए उसका पेट अब बढ़ गया है। विद गुड कैपॉन लाइंड, कैपॉन लाइंड का मतलब होता है ऐसे मुर्गे जो अभी नस्ल को आगे ना बढ़ा सके। ऐसे मुर्गे, इन्हें खस्सी मुर्गे कहते हैं, ये अभी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये मोटे ताजे होते हैं। इस लाइन के अब दो मतलब निकलेंगे। पहला मतलब ये निकलेगा कि उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा मोटे ताजे मुर्गे हैं और पेट बाहर को निकला हुआ है, एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये है खस्सी मुर्गे के मोटे ताजे पेट की तरह उसका पेट ओवर हैंगिंग कर रहा है। दोनों तरह से मतलब एक ही निकलता है कि अब ये जज, जस्टिस जो बन चुका है, इसका पेट बाहर की तरफ ओवर हैंग कर रहा है, क्लियर, लटका हुआ है। विद आइज सिवियर, आंखें अब सख्त हो गई हैं। पहले आंखों में शायद मोहब्बत थी, अब वो आंखें सख्त आंखें हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, दाढ़ी भी अब उसने छोटी कर ली है, नुमाइशी दाढ़ी रखी हुई है। मैंने आपसे अर्ज की थी कि दाढ़ी जब वो जंग में था तो फिर दाढ़ी पॉग की तरह थी, तीखी बड़ी लंबी दाढ़ी थी, और जब वो आउट ऑफ वार हुआ है, अपने प्रोफेशन से बाहर आया है, तो उसकी दाढ़ी भी छोटी हो गई है, नुमाइशी हो गई है। फुल ऑफ वाइज साज, और ये जज साहब जो हैं, ये जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस साहब, ये फुल ऑफ वाइज साज, ये जहानत वाले मशवरों से भरे रहते हैं। हर वक्त इनके पास बड़े कीमती किस्म के मशवरे होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और इनके पास जदीद मिसालें होती हैं कि यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हर बात में इनकी टांग होती है, हर जगह पर इनको कोट्स आते हैं और बातें आती हैं, मिसालें आती हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से वो अपना किरदार पूरा करता है। फिफ्थ स्टेज कंप्लीट, सिक्स्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है। द सिक्स एज शिफ्ट, और छठी एज स्टार्ट होती है। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, अब उसने चुस्त, लीन चुस्त, एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और नरम किस्म की पतलून पहनी हुई है। उसने जो ट्राउजर पहना हुआ है वो बड़ा नरम है, वो मखमली है। स्लिपरिंग का मतलब ही है, स्लीपर्ड का मतलब कि वो स्लिपरी है, वो नरम है, वो उसमें कंफर्टेबल किस्म का है। उसने अब चुस्त और कंफर्टेबल पैंटालून, पैंटालून मीन पजामा, पतलून पहनी हुई है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसने नाक पर स्पेक्टिकल रखे हुए हैं, नाक पर उसने ऐनक रखी हुई है। जैसा कि ये अनम बैठी है, इसने अब ग्लासेस रखे हुए हैं, लेकिन आंखों पर रखे हुए हैं। जब ये बूढ़ी हो जाएगी तो ग्लासेस यहाँ आ जाते हैं। क्लर्क जब जाते हैं ना, तो क्लर्क जब पुराने बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनकी ग्लासेस यहाँ से आती 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 ग्लासेस यहाँ आ जाती हैं उनकी। फिर आप जब जाते हैं, आप करिए मेरी फाइल, फिर हाँ कल आई, वो ऐनक या नाक की टिप पर आ जाती है, और फिर वो आंखें ऐसे करके देखते होते हैं, हाँ कल आई। ठीक है, ये जज भी वैसा जज है। अब जज बनने के बाद अब जब रिटायर्ड हो गया है, अब इसको समझ जरा कम आता है, और ये लोगों को टालने वाली पोजीशन में होता है। नाक के ऊपर चश्मा है, और ये कैफियत वैसी है जैसे हमारे यहाँ पुराने क्लर्क्स की होती है, और कहते हैं हाँ कल आई। स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और फिर स्पेक्टिकल्स, उसके ग्लासेस नाक पर आ जाते हैं। एंड पोच ऑन साइड,
और साइड पर तंबाकू रखता है। अरे बाबा, ये तंबाकू क्यों रखता है? तंबाकू पीने के लिए रखता है। क्यों पीने के लिए रखता है? मुझे ये तजर्बा हो चुका है, मुझे महसूस हो जाता है, जिस शख्स के ज़हन में बहुत ज्यादा आइडियाज हों, जिस शख्स के ज़हन में जिंदगी भर की मेमोरीज और यादें हों, जिस शख्स के ज़हन में बहुत कुछ हो दुनिया के बारे में, उसको फिर नशे का सहारा लेना पड़ता है। ये एक नया तजर्बा है। और जब से लोग बूढ़े हो जाते हैं, अक्सर हमने देखा है हमारे इलाके गांव में भी वे लोग बैठ के हुक्के पीते हैं। और वहां फॉरेन में भी लोग फिर पाउच साइड पर रखते हैं तंबाकू का, और फिर उसमें तंबाकू भर भर के सूपे लगाते हैं। ठीक, His youthful hose well saved. जवानी के मोजे, आपने अगर मोजे कभी देखे हैं, जुराबें तो आप देखते हैं ना, एक मोजे भी होते हैं जो नमाजी लोग हैं वो उनके पास अक्सर होते हैं, चमड़े के बने होते हैं, उन्होंने मोजे पहने चमड़े के बने हुए। ठीक है, तो अगर चमड़े के मोजे होते हैं तो जरिए बात है वो जुराब की तरह नहीं होते। जुराब तो ये है कि वो श्रिंक हो जाती है, मोजे श्रिंक नहीं हो सकते। जवानी में तो वो मोजे पहना करता था, वो उसे फिट थे, पूरे थे। अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो उसकी पिंडली सुकड़ गई है, उसके पांव सुकड़ गए हैं, अब वो मोजे बहुत खुले हो गए हैं उसे। आप कह सकते हैं कि ये मोजे जो हैं उसके पांव या पिंडली के लिए एक वसी और अरीज दुनिया है, बहुत खुले हो चुके हैं। ये मोजे एक बड़ी दुनिया बन चुकी है, यानी कि वसी और यानी कि ये मोजे उसके पांव का बहुत खुले हो चुके हैं। अच्छा, कहा क्या है? यूथफुल होज, उसकी जवानी के मोजे जुराबें वेल सेव्ड, वो अब सेव कर ली गई हैं, उनको ट्रंक के अंदर, बॉक्स के अंदर, अलमारी के अंदर महफूज कर लिया गया है। अ वर्ल्ड टू वाइड, क्योंकि ये एक वसी और अरीज दुनिया है। फॉर हिज शैंक, उसकी सुकड़ी हुई पिंडली के लिए, क्योंकि ये मोजे उसकी सुकड़ी हुई पिंडली के लिए वसी और अरीज दुनिया है। आपने देखा कि अगर बचपन में था बच्चा तो उस वक्त वो पकिंग करता था, लेकिन दूध हवस से ज्यादा पिया था। सेल्फिश इंसान इतना है कि मोजे सुकड़ गए हैं, पिंडली सुकड़ गई है, मोजे खुले हो गए हैं, मोजे दोबारा पहनने भी नहीं है, आ भी नहीं सकते। जीने की ख्वाहिश फिर भी मौजूद है कि कभी शायद काम आ जाए मोजे, और फिर सेल्फिशनेस ऐसी है कि मोजे किसी को दिए नहीं जाते, सेव कर दिए जाते हैं, और आखिरकार वो मोजे फेंक दिए जाएंगे। उसे नहीं पहनने, उसे बूढ़ा ही होना है। लेकिन इंसान की नेचर साथ साथ वाज़ होती जा रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि शेक्सपियर को जो आप कहते हैं कि इतना बड़ा राइटर है, शेक्सपियर बताइए किस चीज पर लिखता है, तो आपका जवाब आसान ये है कि ही इज द पोएट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो इंसान की नेचर के बारे में लिखता है। आप देखिए वो इंसान की स्टेज बता रहा है। यू बिलीव दैट मैं इस पोएम को सिर्फ और सिर्फ 10% डिफाइन कर रहा हूं। मैं पूरे ईमान की हालत में ठहरा हुआ हूं और मैं सिर्फ 10% इसको डिफाइन कर रहा हूं। मैं हर लफ्ज पर एक नई दुनिया खोल सकता हूं इसकी। और 10 साल पहले मेरे लिए ये पोएम बिल्कुल जीरो पोएम थी, इन ऑल पोएम्स, कि ये बातें मैं कहता मैं किसी वक्त भी बैठ के कह सकता हूं। मैं खुद ये बातें कह सकता हूं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, और मैंने कई दफा सोची है, मैं कहता था। लेकिन आज मैं कहता हूं ये पोएम रियली यार बड़ी पोएम है। वक्त के साथ साथ जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे आपको ये पोएम्स याद आएंगी, बीए की सारी पोएम्स याद आएंगी। जब आप फिर आगे जाएंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ हक अदा कर रहा हूं, आपको सारे आइडियाज बता रहा हूं। लेट्स सी। उसकी सुकड़ी हुई पिंडली के लिए ये मौजे अब बहुत वसी और इस दुनिया है, इसलिए इन मौजों को महफूज कर लिया गया है। एंड इज बिग मैनली वॉइस। अब दूसरी तब्दीली क्या हुई है इसके बुढ़ापे में? इसकी बड़ी मर्दाना आवाज, बड़ी मर्दाना आवाज, मैनली वॉइस, इसकी भारी भरकम जो मर्दाना आवाज थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश, वो दोबारा बच्चों जैसी हो गई है। फीबल फाइट, इसके अंदर अब फीबल कपकपाहट है, इसके अंदर अब कपकपाहट है। एंड पाइप, और इसके अंदर बाजे बजते हैं। उसकी आवाज जो है वो दोबारा बच्चों जैसी आवाज हो गई है, वो दोबारा कमजोर आवाज हो गई है।
اس کے اندر اب عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں. اب اس کو اپنی زبان کے اوپر گرفت نہیں رہی, اپنی آواز پر اب اسے گرفت نہیں رہی. آپ نے اس بڑھاپے کی ایج میں دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انسان کی زندگی 70 سالہ ہے, ایک اندازے کے مطابق اگر انسان کی زندگی تقریباً 70 سالہ ہے طبی زندگی, تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ زندگی کے کون سے حصے میں ہے؟ یہ جو 6 سٹیج ہے زندگی کے کون سے حصے میں ہے؟ جی نیر اباؤٹ, آپ کا اندازہ ٹھیک ہے, نیر اباؤٹ یہ 60 ایئر کے بعد کی زندگی ہے. 60 ایئر کے بعد کی زندگی ہے. ہم اوور آل بات کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوں, لیکن ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں کولیکٹیو ڈسکشن ہے. یہ کولیکٹیو ٹپیکل ہم آئیڈیاز لے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس شیکسپیئر نے کہا ہے کہ چائلڈش اس کی آواز ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی چائلڈش ہو جاتا ہے. اس کی چائلڈش وائس کے پیچھے ٹھہری ہوئی بات کیا ہے کہ اس کا ذہن بھی چائلڈش ہے. اب وہ بچوں جیسا سوچتا ہے. کہتے نہیں ہیں اوے شرم کرو بزرگ, کوئی گل نہیں, پھر کی ہو گیا, بزرگ نے کہہ دیتا ہے وہی چپ کرو جی, خیر ہے بزرگ نے جی, وڈے نے جی کی کریے. ہوں باہر کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, گالی دے دیتے ہیں بزرگ, تو آ کر بزرگ سے نہیں لڑتے, اس کے بیٹے کو اگر کہتے ہیں کہ جناب آپ کے والد صاحب دیکھیں جی, آپ کہیں جو ہماری طرف دکان پر آ کر ہم اس نے گالیاں دی ہیں, کہ جی کی کریے جی بزرگ نے ہوں کی کہہ سکتے ہیں, اگر نہیں چپ کر گئے ہیں جی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جب 60 سال سے بڑھ جاتا ہے دوبارہ وہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور بچے بچوں کو پسند کرتے ہیں. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ والد دادا جو ہوتا ہے وہ بیٹے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوتا کہ بیٹا آج یہ میں نے پالا ہے, پوسا ہے, یہ کھلایا ہے پلایا, آج سے باتیں کروں. نہ وہ بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں, پارک میں, آج یہ کھلاؤں, آج سے باتیں کروں, اس سے کھیل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ خود جو بچہ ہوتا ہے, اسی لیے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. شیکسپیئر از ناٹ ایزی. شیکسپیئر کا ذہن کہاں کہاں تک جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں شاید اس کو خود بھی پتا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں کیا کیا انسپائریشن اٹھتی ہیں, کیا کیا چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں, اور کہاں کہاں تک وہ باتیں جا رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ دوبارہ شخص جو بچوں جیسا بن گیا ہے, 60 ابو جا رہا ہے. اب اس کی لاسٹ ایج 70 ابو کی ایج کیسی ہے, یا 70 سال میں وہ کیسا ہو جاتا ہے. اینڈ وسل ان ساؤنڈ, یہ 6 اسٹیج کا ڈائلاگ ہے, اور اس کی آواز کے اندر اب سیٹیاں بجتی ہیں. اب لاسٹ سین ہے آف آل, آخری سین ہے, آخری ایکٹنگ ہے, آخری دور اس کا چل رہا ہے. لاسٹ سین آف آل 70 سال سے ابو زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے. That ends this strange eventful history. اب یہ عجیب و غریب ایونٹفل, یہ واقعات سے بھری ہوئی ہسٹری, تاریخ, یہ شخص محض ایک شخص نہیں ہے بلکہ یہ واقعات سے بھری ہوئی ایک ہسٹری بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ اس کی زندگی جو ہے رنگ پرنگی ہسٹری ہے, اس کی زندگی جو ہے رنگ پرنگی تاریخ ہے. اب یہ رنگ پرنگی تاریخ, یہ انسان جو ہے از سیکنڈ چائلڈنس. اب یہ دوسرا بچپنا ہے. ایک بار پہلے بچپنا تھا, ایک پھر بچپنا آ گیا ہے. اب تو بالکل ہی چھوٹا بچہ بن گیا ہے. ایون کہ اسے اٹھا کر ہاتھ پکڑ کر لے جایا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, اسے لٹایا جاتا ہے. جس طرح بچوں کی کیئر ہوتی ہے ویسے بچے اس کی کیئر کی جاتی ہے. اینڈ میڈ اوبلیویژن, اب گمنامی ہے. دیکھیں کسی وقت وہ آنر کے لیے لڑ رہا تھا, جھگڑ رہا تھا, فخر کر رہا تھا, توپ کے منہ میں گھس رہا تھا آنر کے لیے, اور جب تک دنیا اسے جانے, دنیا اسے جانتی تھی. جسٹس تھا, بات کسی کی ہو بات اس کی اس میں شامل ہوتی تھی, کیونکہ ہی واز مینلی. اب کیا زندگی ہے؟ اوبلیویژن, اب گمنامی ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اس کی سب اوقات اتنی ہے کہ اسے 2 روٹی دینی ہے, نہ اس کی کسی نے سننی ہے نہ بات کرنی ہے. گھر کے اندر جا کر مسائل دادی اماں کے ساتھ, نانی اماں کے ساتھ آتے ہیں کہ دادی کی بات کوئی نہیں سنتا, اور دادی ہر بات میں بولتی ہے, اور سارے کہتے ہیں دادی سے بچ کے رہنا, بچ کے گزرنا.
और दादी की क्योंकि कोई बात नहीं सुनता, वो ओब्लिवियन में जो है, इसलिए दादी हर एक को काटती रहती है, बुलाती रहती है। ये हकैक है। ओब्लिवियन ये गुमनामी की जिंदगी है। सेम टीथ, ये गुमनामी की जिंदगी बगैर दांतों के, सेम आइज बगैर आंखों के, सेम टेस्ट, अब इस शख्स के पास जायका भी नहीं है, सेम एवरीथिंग, अब इस शख्स के पास कुछ भी नहीं है। सेंस का मतलब खो देना, लूज ना होना। तो ये सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? हम सारी बातों का निचोड़ ये निकालते हैं कि हर इंसान ने पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक तिब्बी जिंदगी अगर उसकी है तो उसे पहुंचना है। हमारे घर के अंदर जो लोग इस रंग बिरंगी जिंदगी को गुजारने के बाद बूढ़े हो चुके हैं, तो हम उनसे अच्छा ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि एक मर्तबा वो भी हमारी तरह थे और इस तरह फेम वाली जिंदगी जीते थे, एक बात। और दूसरी बात, हमने खुद भी उस एज में जाना है। आज हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे अच्छा, और उन्हें ये समझेंगे, उनकी तमाम बातों को ऐसे लेंगे जैसे एक मासूम बच्चा कोई बात कर रहा होता है ना समझी में, और उसको अच्छी अच्छी गुफ्तगू देंगे, कंपनी देंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें अजर देगा। और फिर हमारे साथ भी हमारे बच्चे, क्योंकि वो हमें देख रहे होंगे कि हम कैसे अपने बड़ों की कदर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसा ही करेंगे। लगता नहीं है। सुनाई सकते।